Hello students, myself Tanpuri SP and you are attending Industrial Hydraulics and Pneumatics lecture. This is second unit. In this unit you are going to study pumps and actuators. There are two types of pumps, reciprocating pumps and rotary pumps. Already we covered rotary pumps. In this lecture you are going to study reciprocating pumps. Reciprocating pumps are also called as piston pumps. There are two types of piston pumps. First one, that is an axial piston pump, and second one, that is a radial piston pump. Axial piston pumps is having two types, that is a straight axis piston pump and a bent axis piston pump. The pumps where the axis of piston is horizontal, that is called as a straight axis piston pump. The pump where the axis of piston is inclined, that pump is called as a bent axis piston pump. Here this is the sectional view of the straight axis piston pump. Let's talk about its different parts or the components of straight axis piston pump. First one, that is a cylinder block. Here this diagram shows this one is the cylinder. This is the sectional view of the cylinder block. Okay, this is the actual picture of the cylinder block. The cylinder block consists of the axially created cylinder bores. These are called as cylinder bores. What these are called as bores. These are called as bores. Okay, bores are nothing but holes. इसका मतलब क्या है कि ये जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वहाँ पे एक्सियली क्रिएटेड क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और होल्स को क्या बोलते हैं, बोर्स बोलते हैं. अभी एक्सियली क्रिएटेड क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है दैट इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर ब्लॉक. ये सिलेंडर ब्लॉक का एक्सिस है और ये जो है ये होल का एक्सिस है. ओके, तो ये दोनों भी एक्सिस कैसे हैं, पैरेलल है. दोनों भी एक्सिस कैसे हैं, पैरेलल है. तो ये जो होल्स है दैट द एक्सिस ऑफ all the holes, all the bores are parallel to the axis of cylinder block. Therefore it is called as the cylinder bores are axially created. This cylinder block is coupled with, or it is connected to the drive shaft. It is connected to drive shaft. Okay, so and this drive shaft is coupled with electric motor. This is the electric motor. Okay, it means that when this electric motor starts, okay, then this cylinder block rotates. When this electric motor starts, this drive shaft rotates and it rotates this cylinder block. So there is a question, why these bores are created in the cylinder block. These bores are created for these pistons. These are the pistons. These are the piston. तो यहाँ पे जो सिलेंडर ब्लॉक है वो ब्लॉक में ये बोर्स क्यों है, किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये पिस्टन के लिए है. सो दीज पिस्टन्स आर इंसर्टेड दिस सिलेंडर ब्लॉक्स एंड दीज पिस्टन्स आर रेसिप्रोकेटेड इनसाइड दिस सिलेंडर ब्लॉक. तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सिलेंडर ब्लॉक है, इस सिलेंडर ब्लॉक में ये बोर्स हैं. ओके, यहाँ पे देखिए ये एक वन बोर है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा बोर है. तो ये जो बोर है उसमें ये जो पिस्टन है दैट पिस्टन इज इंसर्टेड. ये देखो ये जो पिस्टन है ये बोर में इंसर्ट किया हुआ है. और ये सेकेंड जो है ये दिस इज द पिस्टन. दिस पिस्टन्स आर इंसर्टेड इन द सिलेंडर बोर्स. ओके, एंड दिस पिस्टन्स आर कनेक्टेड टू द शू प्लेट. Here this is the shoe plate. Okay, so these pistons are connected to the shoe plate. Okay, with the help of this piston shoe. This is called the piston shoe. Okay, ये जो है देखिए यहाँ पे ये पिस्टन है और ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टन क्या बोलते हैं, शू. मतलब ये जो पिस्टन है ये कनेक्टेड है शू प्लेट से विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन शू. एंड हियर देयर इज अ बॉल जॉइंट. ये दोनों में कौन सा जॉइंट है, बॉल जॉइंट है. वो 360 डिग्री रोटेशन क्या करता है, अलाउ करता है, बॉल जॉइंट. ओके, and this swash plate is connected, this shoe plate is connected to the swash plate. ये जो देखा है आपने ये what is this is a swash plate. Okay, so let's talk about this swash plate. ये swash plate किस तरह से इसका arrangement है. ये जो swash plate है अगर इसका एक्सिस हम इस तरह से निकालेंगे, this is the axis. ये जो किसका एक्सिस है, सिलेंडर ब्लॉक का एक्सिस है. Okay, this is सिलेंडर ब्लॉक का एक्सिस है. Okay, और
this is the axis of cylinder block and here this is the axis of swash plate. तो इस तरह से ये श्वास प्लेट का एक्सिस है. ओके, तो this swash plate is inclined to the axis of cylinder block. ओके, किस तरह से अरेंजमेंट है, क्या किस तरह से हम लिखेंगे? swash plate is inclined to the axis of cylinder block. ओके, और दिस इज द वॉल प्लेट. ये जो है वो क्या है? वॉल प्लेट है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दिस इज अ वॉल प्लेट. ये जो है ये क्या है? वॉल प्लेट है, दिस वन. तो ये जो वॉल प्लेट है मतलब वहाँ पे क्या है? वॉल से. कौन से वॉल होने वाले हैं पंप में? तो सक्शन वॉल होता है और दूसरा होता है डिलीवरी वॉल. इसको हम सक्शन पोर्ट बोल सकते हैं, इसको डिलीवरी पोर्ट बोल सकते हैं. सक्शन पोर्ट से ऑयल अंदर जाता है, लो प्रेशर ऑयल अंदर जाता है और वो हाई प्रेशर ऑयल यहाँ से डिलीवरी जो वॉल है वहाँ से बाहर आता है. ओके, और ये जो सब कंपोनेंट्स है दैट आर इनकेस्ड और इन हाउस इन अ पंप बॉडी. ओके, सो ये तो हुआ एक्सिस पंप के कंस्ट्रक्शन के बारे में. तो भी हम इसके ये जो वर्क कैसे करता है वो हम देखेंगे. जब हम इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करते हैं तो ये ड्राइव शाफ्ट रोटेट होता है. इस तरह से ये ड्राइव शाफ्ट रोटेट होता है. जब ड्राइव शाफ्ट रोटेट होता है तो ये जो सिलेंडर ब्लॉक है उसको भी रोटेट करता है. ये सिलेंडर ब्लॉक जैसे रोटेट होता है तो वैसे ये जो पिस्टन है तो इसके अंदर ये जो सिलेंडर के अंदर वो क्या होते हैं? रेसिप्रोकेट होते हैं. दिस पिस्टन स्टार्ट्स रेसिप्रोकेटिंग. ओके, ये जो सिलेंडर ब्लॉक है उसका जो लोअर हाफ है वो लोअर हाफ में पिस्टन का जो स्ट्रोक है दैट इज अ रिटर्न स्ट्रोक. ओके, यहाँ पे पिस्टन का कौन सा स्ट्रोक हो रहा है? रिटर्न स्ट्रोक. पिस्टन अंदर जा रहा है और यहाँ पे कौन सा स्ट्रोक हो रहा है? फॉरवर्ड स्ट्रोक हो रहा है. दिस इज अ फॉरवर्ड स्ट्रोक. पिस्टन यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है. ओके, तो पंपिंग चेंबर यहाँ पे हमको क्या देखना है कि जो ऑयल ट्रैप चेंबर है, ऑयल ट्रैप चेंबर का वॉल्यूम जब जैसे इंक्रीज होता है सो at that place there is a suction. Okay, and where the pumping oil trap chamber volume reduces the oil is get pressurized and delivered. तो हमको देखना है कि ऑयल ट्रैप चेंबर का वॉल्यूम कहाँ पे इंक्रीज होता है. तो ये जो पिस्टन है वो इस तरह से इसका फॉरवर्ड स्ट्रोक हो रहा है. तो ये जो ऑयल ट्रैप चेंबर का वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज होगा. यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है कि इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो दिस पिस्टन is moving this side. Okay, and this piston is moving this side. तो आपको अभी यहाँ पे क्या करना है कि ये जो ऑयल है, ऑयल जो होने यहाँ पे ऑयल ट्रैप चेंबर जो है उसके साथ में क्या होने वाला है? So when this piston is moving this side, okay, this oil trap chamber volume increases. And when the oil trap chamber, so यहाँ पे oil trap chamber का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है. So यहाँ पे volume of oil trap chamber increases, and when oil trap chamber volume increases, it creates a vacuum, and due to the vacuum, there is a suction of oil. तो oil यहाँ पे इस तरह से enter होगा. Okay, तो oil जो है इस oil trap chamber में क्या होगा? Trap होगा. And as the cylinder block is rotating, ये cylinder block क्या हो रहा है? Rotate हो रहा है. तो ये इस तरह से यहाँ पे आएगा. Okay, तो 0 to 360 degree rotation of the cylinder block there is a suction. 0 to 180 degree rotation जो है so वहाँ पे suction होगा. ओके, मतलब यहाँ पे ओके 0 to 360 degree में जो है मतलब ये हाफ पोर्शन जो है ये जो नीचे वाला इस एक्सिस के नीचे वाले जो कुछ यहाँ पे सिलेंडर्स है तो वहाँ पे क्या होने वाला है? सक्शन होने वाला है. और 180 डिग्री टू 360 डिग्री जो अदर हाफ रोटेशन है 180 डिग्री टू 360 डिग्री वहाँ पे क्या होने वाला है? डिलीवरी होने वाला है. तो उसमें कौन सा स्ट्रोक होगा? जो पिस्टन इज मूविंग टू दिस साइड, यहाँ पे पूरा ऑयल है. When this piston is moving to the left side, then what happens with this oil trap chamber volume? Here the oil trap chamber volume reduces. When the oil trap chamber volume reduces, oil is get pressurized. Oil is get pressurized and it is forced out through the delivery port. यहाँ से ऑयल बाहर निकलेगा. तो ये जो सिलेंडर ब्लॉक है उसमें यूजुअली कितने बोर्स होते हैं? तो 8 to 12 बोर्स होते हैं. 8 to 12 बोर्स इसमें होते हैं. अभी हमको देखना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्वैश प्लेट.
तो ये स्वैश प्लेट का क्या यूज़ है? तो यहाँ पे हम स्वैश प्लेट का एक्चुअली यूज़ क्या है वो देखेंगे। तो ये देखो, दिस इज़ द, ये जो है वो एक्सिस है सिलेंडर ब्लॉक का, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर ब्लॉक, और यहाँ पे इस तरह से ये स्वैश प्लेट है। ओके, तो इस तरह से ये स्वैश प्लेट है। ओके, दिस इज द स्वैश प्लेट, और दिस इज द एक्सिस ऑफ स्वैश प्लेट, दिस इज द एक्सिस ऑफ स्वैश प्लेट। तो ये स्वैश प्लेट का एक्सिस है। ओके, अभी जो स्वैश प्लेट का एंगल मतलब क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ स्वैश प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू the axis of cylinder block. Then okay, here we need to draw the perpendicular to this axis of cylinder block. So here this line is perpendicular to, this line is perpendicular to the axis of cylinder block. तो ये जो दोनों में एंगल है उस एंगल को बोलते हैं स्वैश प्लेट एंगल। ओके, so how to define a swash plate angle? It is the angle between the axis of swash plate and a line perpendicular to the axis of cylinder block। क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो एक्सिस है सिलेंडर ब्लॉक का उसको क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों में जो एंगल होता है दैट इज द एंगल ऑफ स्वैश प्लेट। अगर यह एंगल को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर इस स्वैश प्लेट को इस तरह से हम मूव करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे, तो ये जो एंगल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम स्वैश प्लेट को इस तरह से मूव करेंगे तो स्वैश प्लेट का एंगल क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। सो स्वैश प्लेट का ये जो एंगल है वो हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सो देखो, अभी ये जो एंगल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर ये एंगल चेंज होता है, ये अगर ये जो स्वैश प्लेट है, अगर हम इसको इस तरह से इसको मूव करते हैं, मतलब इस तरह से इसको रोटेट करते हैं, ये जो स्वैश प्लेट है ना, इस तरह से उसको रोटेट करते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, ये एंगल जो है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? तो ये एंगल जो है वो इंक्रीज होगा। ये एंगल इस तरह से स्वैश प्लेट को हम इस तरह से मूव करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये एंगल अगर इंक्रीज होगा, ओके, तो इस तरह से ये जो स्ट्रोक लेंथ है, ये जो स्ट्रोक लेंथ होता है, ये जो पिस्टन का जो स्ट्रोक लेंथ है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्योंकि ये जो पार्ट है ये थोड़ा इधर चला जाएगा, ये जो पार्ट है थोड़ा नीचे चला जाएगा, तो ये स्ट्रोक लेंथ है ना वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, स्ट्रोक लेंथ जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एंगल जो है वो स्वैश प्लेट इंक्रीज होता है तो स्ट्रोक लेंथ भी इंक्रीज होता है, एंगल इंक्रीज होता है तो स्ट्रोक लेंथ इंक्रीज होता है। स्ट्रोक लेंथ इंक्रीज होता है मतलब क्या, कि ज़्यादा ऑयल इसमें आएगा। ओके, मतलब ऑयल ट्रैप चेम्बर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अगर ऑयल ट्रैप चेम्बर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा मतलब क्या, कि डिस्चार्ज भी उस पंप का क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इस तरह से इफेक्ट होता है। ओके, अगर हम ये जो प्लेट है, अगर इसको इस तरह से हम रोटेट करेंगे, इस तरह से हम उसको मूव करेंगे। ओके, फिर से हम थोड़ा रिपीट करते हैं। ये जो एंगल है, अगर ये जो स्वैश प्लेट है उसको इस तरह से उसको रोटेट करेंगे, स्वैश प्लेट को इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये जो एंगल है स्वैश प्लेट का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये जो एक्सिस है इधर चला जाएगा, तो ये जो एक्सिस ओके, तो ये जो एंगल है वो इंक्रीज होगा। ये एंगल इंक्रीज होने से क्या होगा, ये जो यहाँ का स्ट्रोक लेंथ है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि पिस्टन जो है इस तरह से इधर मूव होगा। ओके, क्योंकि ये जो पूरा ये जो स्वैश प्लेट है इस तरह से इधर झुक जाएगा, और ये जो पिस्टन इस तरह से इधर जाएगा, मतलब ये जो स्ट्रोक लेंथ है ना वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, स्ट्रोक लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा। स्ट्रोक लेंथ इंक्रीज होता है मतलब क्या होता है, कि वो ऑयल ट्रैप चेम्बर जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होता है मतलब उसमें ज़्यादा ऑयल आएगा, मतलब उस पंप, वो जो पंप है उसका डिस्चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब क्या, कि अगर एंगल जो है वो एंगल इंक्रीज होता है तो स्ट्रोक लेंथ इंक्रीज होता है, अगर स्ट्रोक लेंथ इंक्रीज होता है तो डिस्चार्ज भी पंप का इंक्रीज होता है। तो अभी बात करते हैं कि अगर एंगल डिक्रीज अगर करना है, मतलब ये जो एंगल है दोनों के बीच में, ये जो दिस स्वैश प्लेट एंगल है उसको डिक्रीज करना है, मतलब ये जो स्वैश प्लेट है उसको इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा। स्वैश प्लेट को इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा तो ये एक्सिस और लाइन दोनों क्लोज आ जाएंगे, मतलब ये जो एंगल है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। अगर स्वैश प्लेट का एंगल हमने कम कर दिया, ओके, मतलब ये जो स्वैश प्लेट है ना ये इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में ओके टर्न होगा।
तो ये जो पिस्टन है ना वो इस तरह से इधर मूव होगा, मतलब इधर चला जाएगा, ये जो पिस्टन है ना इधर चला जाएगा, और ये जो स्ट्रोक लेंथ है ना वो कम हो जाएगा, ये पूरा ये स्ट्रोक लेंथ इतना ही हो जाएगा, मतलब स्ट्रोक लेंथ क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। स्ट्रोक लेंथ रिड्यूस हो गया मतलब ऑयल ट्रैप चेंबर का जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, ओके वॉल्यूम रिड्यूस होगा, और वॉल्यूम रिड्यूस है मतलब कम ऑयल उस पंप में आएगा, मतलब जो पंप का डिस्चार्ज होगा वो भी कम होगा। इसका मतलब ये है, ओके इसका मतलब ये है कि जो डिस्चार्ज होता है पंप का, दैट डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्वैश प्लेट एंगल, दैट डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्वैश प्लेट एंगल, मतलब स्वैश प्लेट का एंगल अगर इंक्रीज होता है तो डिस्चार्ज भी इंक्रीज होता है, अगर स्वैश प्लेट का एंगल डिक्रीज होता है तो डिस्चार्ज भी डिक्रीज होता है। अब फाइनल केस ये हम देखेंगे कि अगर ये एंगल 0 है तो क्या होगा। देखो अगर स्वैश प्लेट को हम इस तरह से इधर मूव करेंगे, इस तरह से इसको रोटेट करेंगे और फाइनली हम वर्टिकल पोजीशन में लाएंगे, जब वर्टिकल पोजीशन में लाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये स्वैश प्लेट है, ये कम्प्लीटली वर्टिकल है, मतलब ये जो दिस इज द एक्सिस ऑफ स्वैश प्लेट एंड दिस इज आल्सो अ लाइन परपेंडिकुलर टू द स्वैश प्लेट, मतलब ये जो एंगल है स्वैश प्लेट का जो एंगल है वो कितना है, 0 है, क्योंकि स्वैश प्लेट का एंगल मतलब क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ स्वैश प्लेट एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो दोनों भी लाइन एक ही है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 0 है। अब इस केस में पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट होगा या नहीं, तो इस केस में देखो अगर ये एंगल 0 है तो ये स्वैश प्लेट रोटेट होगा, उसके साथ में ये पूरा सिलेंडर ब्लॉक भी रोटेट होगा, ओके, लेकिन यहाँ पे ये जो पिस्टन है उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं होगा, दिस पिस्टन विल नॉट रेसिप्रोकेट, ये पिस्टन जो है रेसिप्रोकेट नहीं होगा। ये पिस्टन अगर रेसिप्रोकेट नहीं होगा तो ये जो ऑयल ट्रैप चेम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा उसका मतलब है कि उसका पंप का जो डिस्चार्ज है वो कितना होगा, 0 होगा, वो पंप काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब वर्क करता है, जब ऑयल ट्रैप चेम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो सक्शन होता है, जब ऑयल ट्रैप चेम्बर का वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो डिलीवरी ऑफ ऑयल होता है। और इस केस में क्या होता है कि स्वैश प्लेट का एंगल अगर 0 है तो ये पिस्टन रेसिप्रोकेट ही नहीं करेगा, खाली वो रोटेट होगा, तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा तो उसका डिस्चार्ज क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे हमने वही बताया है, चेंज इन स्वैश प्लेट एंगल वैरीज डिस्चार्ज ऑफ पंप, मतलब हमने एंगल जो है स्वैश प्लेट का अगर वो वैरी किया तो उसके साथ में डिस्चार्ज भी वैरी होता है। When swatch plate angle increases, अगर हमने swatch plate का एंगल इंक्रीज किया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन इंक्रीजेस, पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर स्ट्रोक लेंथ है वो इंक्रीज होगा, एंड ड्यू टू विच द डिस्चार्ज इंक्रीजेस, ओके मींस when the angle increases the discharge increases, and यहाँ पे vice versa है, when the swatch plate angle decreases displacement of the piston decreases due to which discharge decreases, okay। डिस्चार्ज ऑफ पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्वैश प्लेट एंगल, मैंने वो दिखाया। तो ये जो डायग्राम है वो क्या दिखाता है, मैक्सिमम स्वैश प्लेट एंगल, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे नीचे, ओके दिस थीटा, दिस इज मैक्सिमम स्वैश प्लेट एंगल, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, तो यहाँ पे डिस्चार्ज भी कितना क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे जो डिक्रीज स्वैश प्लेट एंगल दिख रहा है, या जो स्वैश प्लेट एंगल है मिनिमम स्वैश प्लेट एंगल है, तो यहाँ पे भी जो स्ट्रोक लेंथ होगा वो कम होगा, और ये जो केस है दैट इज ये द स्वैश प्लेट एंगल 0 है, मतलब नो 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन मींस डिस्चार्ज इज 0, ओके। Okay, तो let's see the animation of this pump, ये जो पंप देखा है स्ट्रेट एक्सिस पिस्टन पंप है उसका एनिमेशन हम देखेंगे। engine or an electric motor rotates a cylinder barrel. देखिए ये जो यहाँ पे ये जो है वो सिलेंडर ब्लॉक है, और उस सिलेंडर ब्लॉक में क्या है, ये पिस्टन्स है, ओके, और दिस पिस्टन्स आर कनेक्टेड टू द स्वैश प्लेट विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन शू, ओके, दिस इज ड्राइव शाफ्ट, जैसे ड्राइव शाफ्ट रोटेट होता है वैसे सिलेंडर ब्लॉक भी क्या होता है, रोटेट होता है, और ये जो प्लेट है वो इंक्लाइंड है, उसकी वजह से इसमें रेसिप्रोकेशन होता है। अगर ये प्लेट को स्ट्रेट कर दिया जाए तो ये पिस्टन रेसिप्रोकेट नहीं होगी और पंप का डिस्चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ओके। तो देखो ये जो है पोर्ट प्लेट है, मतलब 0 to 180 डिग्री में सक्शन होता है और 180 to 360 डिग्री में क्या होता है, डिलीवरी होता है।
अभी यहाँ पे हमने एक ही पिस्टन यहाँ पे कंसिडर किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो यहाँ पे गौर कीजिए, तो देखो देखो क्या हो रहा है। अभी ये पंपिंग चैम्बर, ऑयल ट्रैप चैम्बर जो है उसका वॉल्यूम देखिए। अभी ये ऑयल ट्रैप चैम्बर यहाँ पे देखो, अभी ऑयल ट्रैप चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो देखो। ऑयल ट्रैप चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑयल ट्रैप चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑयल अंदर आता है। ऑयल क्या होता है, अंदर आता है। और ये देखो, ये जो पूरा है, ये दिस इज द सक्शन पोर्ट। ये जो पूरा है वो सक्शन पोर्ट है। तो ये सक्शन पोर्ट के आगे सिलेंडर आने, मतलब अगर इस सिलेंडर ब्लॉक में 8 सिलेंडर बोर्स हैं, तो इसमें 4 होने, इसके सामने क्या आने वाले हैं, 4 सिलेंडर बोर्स आने वाले हैं। मतलब वो जो 4 सिलेंडर बोर्स है उसमें क्या होने वाला है, सक्शन, और रिमेनिंग में क्या होने वाला है, डिलीवरी होने वाला है, मतलब ओके। और देखो अभी पंपिंग चेम्बर का वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस होता है। मतलब ये जो सिलेंडर ब्लॉक है ना, 0 to 180 डिग्री जैसे रोटेट होता है, तब वहाँ पे सक्शन होता है। और 180 to 360 डिग्री में क्या होता है, ये होता है, डिलीवरी होता है। तो यहाँ पे देखिए कि पंपिंग चेम्बर का वॉल्यूम रिड्यूस हुआ। पंपिंग चेम्बर का वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, पंपिंग चेम्बर का वॉल्यूम जैसे रिड्यूस होता है तो ये कलर ब्लू में, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऑयल इज गेट प्रेशराइज्ड और ये स्पोर्ट से वो बाहर निकलता है। ओके, इस तरह से देखो, इस तरह से होता है। ओके, And if the colors of the discs are darker, the piston is जहाँ पे away from ब्लू the कलर port है plate, वहाँ पे as सक्शन shown होता in है, this जहाँ section पे of the रेड animation. कलर है वहाँ पे क्या होता है, डिलीवरी This is होता how है। we can tell whether the port जो plate shown सिलेंडर represents इसके a सामने pump or a सामने आते हैं motor. वहाँ पे सक्शन हो रहा होता है, और जो Since the जो red इसके discs सामने आते on हैं the वहाँ पे red डिलीवरी crescent होता changes from a है, हो deep रहा होता है। red मतलब to ये a जो lighter सिलेंडर red, ब्लॉक है उसके this हाफ पोर्शन signifies में a pump. सक्शन है और हाफ If it were a पोर्शन में क्या motor, होगा, the डिलीवरी। तो opposite would सिलेंडर be ब्लॉक true. है पूरा देखो, सर्कुलर, उसके हाफ पार्ट This में क्या है, concludes our सक्शन है, हाफ presentation पार्ट में on क्या the है, fixed डिलीवरी displacement होता piston है। pump. We will show an advanced ओके, version of this सो pump, इस तरह the से ये variable पंप जो है वर्क displacement करता piston. है। Okay, so this is about the straight axis piston pumps.